एक्चुअल रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो अभी देयर इज आस्क टू ऐड सम नेटवर्क्स इन इन्फोब्लॉक्स फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट network, we need to add this network, we need to add this network, and we need to even this network also. Okay, so we will add these four networks in our infologs. Okay, so this belong to uh, 192 class C. This is also class C, and this is also class C. Okay, but I am going to add slash 16 container for this network for understanding, so that later part we will use for our extensible attributes also. Okay, so I'm going here to add the container IPv4 network, and this should be the container. Okay, so instead of slash 14 I'm going to add slash 16, and I'm going to add 192.168.0.0, and I'm saving directly. Okay, now whenever I will create the network which is not belong to this range, or let's say this slash 16 network, so this will show here, otherwise it will directly go inside this container. Okay, it will not display here. And another thing, suppose you have already some networks, those are falling in this network, okay, or container, so those will automatically move inside this container whenever you will create the container. So I'm going to delete it. Okay, 1 minute. Okay, I'm showing to add one network manually here, not using any template. Okay, I'm going to add here 192.168. Let's say 50.0. This is slash 50 network. Okay, I will explain container later. Okay, I'm not covering container right now, but if you will see here in the list, this container is showing here. Okay, but I'm going back on the home. Here I want to delete this container. So delete only the network container and reparent the subnetwork. Uh, Else, if you want to delete each and everything inside this container along with container, so I want to delete only the container. Okay, so this network now it is not having any parent. Okay, now I am going to add the container again. Select 16. Okay, so this network is automatically moved inside the container. Now what is our ask? 10 network. Okay, first I am going to add the 10 network. Ten dot zero. Okay, so while creating the network, if I will disable the DHCP here, I will pick this option, so it will disable the DHCP services for this network, so you cannot use for DHCP services whatever. Okay, and if you are running the DNS inside this your grid, so if you want to create the reverse lookup zone for that particular network, so you can apply the setting here. You can enable the setting, so it will create the reverse lookup zone, or let's say authoritative reverse lookup zone inside the DNS. Okay, so here we are not going to add reverse lookup zone. Okay, here there is no network. Okay, we will add the network later. We can add the, sorry, not network, this is the member, so I'm not selecting any member. Okay, I'm directly saving here. So if you will see here, there are two networks. Okay, but if the next is 4 and another one is 6. So now this time I am going directly inside the container. Okay, here
192.168.4.0. Okay, what is another? And so that's same net cider. Okay, another one is 6.0. Okay, so we have these networks inside our uh, container. Okay, now we want to provide the DSCP services from here. Okay, here to here. Okay, here to here and here to here. So this is our Active Directory server. So we will provide the static IP address. So if we will not run the DHCP services here, so it does not affect anything. Okay, so we will test as usual. So now I am selecting this grid member as a DHCP server for this network and this network. If I will select two at a time, so your edit option will disable. So at a time you can do it for single network only. So here I am putting only one member. I want to this branch office as a member. Okay, and simply I am adding here, and this one also. Okay, but if you will see here, our DSCP services are not enabled, so it will not support. Okay, what are our DSCP members? So these members are showing here, but services are not running here. Okay, so we need to start the DSCP services. So we cannot start the DSCP services from here, I believe. Okay, there is no option. Okay, now if I will go inside think this, I think I think if we'll select it and there is an option to edit, right? So you huh, just so like when you selected the DSCP, the first DSCP, huh, select edit. No, no, on the left, click on the checkbox click on the checkbox. Okay, and edit option. edit option. Okay, I believe And there is no option here. Okay, so there is no okay, option, we cannot run it from here. If I will go inside the network, whatever all networks are assigned to this member, it will display here. Okay, now I'm going to parent. Okay, so to start the services you need to go at grid level. Okay, at the grid level you can start the member uh, and select start the the, member and then I think. now go inside the services. Okay, select the member and then start the service. So first tile was selected by default, so I started the service here. Similarly, same time I'm starting the DNS services also for here. Okay, so DNS is running. If I will check DSCP, so DSCP is also running. Okay, same time we can run for our grid master candidate also, but we will use later after fixing the issue. Okay, if we will start running the services here, we can start. So later part whenever we will run the uh, grid master failover here, after that it will sync all the things after that automatically. Okay, now, so here you can see under the DSCP, under the members, status is running. So status means DSCP services are running here. Now we need to to go and edit the network settings. So here we have to go inside this. Okay, member assignment is okay. Okay, DHCP option. So there is no router. Okay, so from its parent, it
it is getting the settings right now, but at the parent level there is no setting. Okay, so parent means if I will apply any setting here also, suppose for uh, all the networks inside the container. Okay, if I will go home, so in this container if I will go edit and I will apply the setting here. Suppose for entire container there should be one gateway, that is router. So I can put the gateway IP address 192.168.0.1 like that. Okay, so it will applicable to all the network inside the container. So similarly, we can apply the DNS servers information here, DSCP multiple options here like option 43 or option 11 or option 67, 66, etc. So I'm not going to apply from here, but if we applied here and bind to break that setting. Okay, so suppose for entire networks, all networks should obtain the settings from its parents like container, but for one network it should be individual settings. So we can go inside the network, and inside the network we can hit on the override button. So after that it will break the inheritance between the container and network, and you can apply the individual settings. So here I am putting the gateway address 10.1 for this particular network. Okay, for DNS we don't have any information. It could be the external DNS also, or global DNS, or any other DNS server. It is not mandatory. It should be a Infoblox DNS server. DNS server may be the Windows DNS server also, but it should be reachable from this grid. Okay, similarly I am going to apply the setting for this. जैन साहब मान लीजिए हमने डीएनएस जो है वो ये मैं कंटेनर लेवल पे कॉन्फ़िगर कर दिया। हाँ, अब उसका जो गेटवे एड्रेस है वो सबनेट बेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। See here I am going to apply the DNS setting from here. Okay, for testing purpose I am, see, this container will get the entire setting from the grid level also. So whatever the settings you are applying at grid level, you are applying at grid level, so similar setting will be applicable to entire container and each and everything. Okay, so suppose at grid level you are applying the settings from here. um, well, I cannot add it. So so some settings we can apply from here. This should be applicable to that particular member server as a general settings, and some settings will be applicable to that container also. Okay, suppose here it is showing. I'll check that option. It is not showing here. I'll check and I'll tell you. Okay, so for now I'm going here and applying the setting as you said. जैसा आप बोल रहे हैं राजू भाई, मैं जाके इधर राउटर का तो नहीं दे रहा हूँ, हाँ मैं राउटर का भी दे देता हूँ। 92.168.0.1 ये हमारा गेटवे रहेगा फॉर ऑल नेटवर्क, और DNS सर्वर 8.8.8 फॉर टेस्टिंग। ठीक है, रीस्टार्ट द सर्विसेज। कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा आप तो सर्विसेज रीस्टार्ट करना पड़ेगी। ये दिखाएगा आपको कि आप क्या क्या सर्विसेज आपने अप्लाई की है, ये दिखा देगा। अब मैं जा रहा हूँ इसके अंदर।
अभी 4 नेटवर्क है, इस पे हमने कुछ नहीं किया था, इस पे देखते हैं। देखिए ये सेटिंग यहाँ से ले ली इसने। हम्म अच्छा, ओवरराइड पे क्लिक कर देंगे तो इसका स्पेसिफिक हाँ, ये होगा। ये 6.1 का नेटवर्क का है राउटर, ये इसको ओवरराइड नहीं हुआ, बट डीएनएस का सेटिंग इसने ऊपर से ले लिया अपने पेरेंट से। सिमिलरली अगर हम इस पे जाते हैं तो इस पे भी हमने इसको ब्रेक कर दिया था, बट अप्लाई नहीं किया था, इसलिए इसने ऑब्टेन नहीं किया सेटिंग अपने पेरेंट से। सो मैं जाके यहाँ पे 10.1 सेव कर देता हूँ। ठीक है, जब भी कोई मेजर सेटिंग हम अप्लाई करते हैं किसी नेटवर्क पे तो सर्विसेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा हमको। और अगर हम इस पे जाते हैं तो अगर आप इस पे देखेंगे तो इस पे हमने ब्रेक नहीं किया था, तो ये पेरेंट से ले रहा है और डीएनएस को भी ले रहा है। इसको मैं ओवरराइट कर देता हूँ और इसको दे देता हूँ 192.168.50.01। ये ओवरराइड वाला वैल्यू ये मतलब हाईएस्ट प्रेसिडेंट होगा इसका, और ये जाके वहाँ डिवाइस पे ये कॉन्फ़िगर होगा डीएचसीपी वैल्यू। हाँ। सो सपोज राज भाई, जैसे हमने यहाँ पे एक कंटेनर और क्रिएट कर दिया /23 का, लेट्स से यार /22 का कर दिया कंटेनर क्रिएट, और हमने पेरेंट पे /16 पे कोई सेटिंग अप्लाई की तो वो उस कंटेनर पे अप्लाई हो गई। अब सपोज /22 के हमारे पास इसमें 4 कंटेनर है फॉर एग्जांपल, तो उन 4 में से हमें 3 पे अपनी इंडिविजुअल सेटिंग देना है, उसको ब्रेक करना है। तो कंटेनर विद इन कंटेनर रह सकता है, एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर आ सकता है। बिल्कुल, आपके सामने अभी क्रिएट करता हूँ मैं नेटवर्क कंटेनर। ओके, सो 192.168. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ नेट मास्क मांग रहा है ओनली। सॉरी यहाँ पे देना है। और बट वो कंटेनर अंडर कंटेनर नहीं हुआ ना, वो तो आपने ऐसे एक /22 का एक सेपरेट सबनेट डाल दिया उसके अंदर। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ ना आपको। ठीक है, ओके, तो ये आपको 9 बनाना 8 पे आएगा ना, ये 192.168.8.0। ये आ गया। तो अब अगर आप इस पे देखोगे तो सिंबल बदल गया उसका। सो इफ यू सी ऑन दिस ऑन द लेफ्ट, हाँ, वो एज ए कंटेनर और फोल्डर जैसे दिखेगा आपको। अभी आप इस पे देखोगे तो ये 0.1 ही ले रहा है गेटवे को, ये अपने पेरेंट कंटेनर से सेटिंग्स को ऑब्टेन कर रहा है। बट इसके अंदर अगर जाके देखोगे आप, 10 का जो नेटवर्क है, 10 के नेटवर्क को आपने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ था, तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हायरार्की बनती चली जाएगी। अभी आप अगर इसके पे होम पे जा रहा हूँ, आईपैम होम पे, तो इस पे एक ही कंटेनर देख रहा है। ठीक है, इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अगर टॉगल फ्लैट व्यू में देखना चाहता हूँ, सॉरी इसको करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक दिखेगा। तो ये पूरा दिखा देगा, फ्लैट है। अभी हायरार्किकल नहीं दिख रहा है, इसमें पूरा फ्लैट व्यू दिख रहा है, जो कुछ भी सारा बोर्ड पे है। तो n नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट होते चले जाएंगे, आप नेक्स्ट 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 और लास्ट करके आप देख सकते हो। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अपना अरेंज करके देख सकते हो, ये सभी करना है। बट अगर आपको हायरार्किकल व्यू में चाहिए तो हायरार्किकल व्यू में ये आपको वैसे अलग दिखेगा। अब मैं एक अगर 10 का नेटवर्क क्रिएट करूँ तो 10 का नेटवर्क भी यहाँ पे आपको बेसिक कंटेनर दिखने लगेगा। अगर 10 का सेपरेट नेटवर्क क्रिएट करना है, सेपरेट नेटवर्क क्रिएट कर दूंगा मैं मैनुअली। सपोज ये 8 है, ये नेटवर्क क्रिएट हो गया। अभी मेरे को अगर 172 का क्रिएट करना है कंटेनर, ये इसे 16 का कर देता हूँ।
तो ये इसका कंटेनर क्रिएट हो गया। अब इन सबको अगर फ्लैट व्यू में देखना है तो फ्लैट व्यू में हम देख सकते हैं पूरा, इतना सारा आपको देखने लगेगा पूरा। तो अभी हमने इसमें हमारा 10 का नेटवर्क है और 6 का नेटवर्क है, इन दोनों में हमने गेटवे डाल दिया। ठीक है, एक फीचर और है इसमें VLAN मैपिंग का, हम चाहें तो VLAN भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो हम VLAN क्रिएट कर लेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, इससे आई डोंट थिंक ये इफेक्ट पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे चल के। तो अभी हमने जो भी गेटवे डाला है पर्टिकुलर इस नेटवर्क के लिए, इसको गेटवे तो बता दिया। ठीक है, गेटवे बताने के बाद इधर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, प्लस हमारे DHCP पे रेंज क्रिएट करना पड़ेगी हमें। तो हम DHCP पे जाते हैं, पहले रेंज क्रिएट कर देते हैं। तो इसके लिए DHCP पे जाएंगे हम। DHCP में भी वही नेटवर्क दिख रहा है, ठीक है, बट वहाँ पे आप फ्लैट व्यू और हायरार्किकल व्यू का ऑप्शन इसमें नहीं दिखता है। ठीक है, और इसमें नेटवर्क के साथ में सिर्फ नेटवर्क दिख रहा है, इसमें कंटेनर नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, उधर कंटेनर भी दिखता है, नेटवर्क भी दिखता है। अभी जो न्यू वर्जन आया है उसमें मैंने चेक नहीं किया कि उसमें कैसा होता है, मैं चेक कर लूंगा एक बार तो बता दूंगा। तो 10 का नेटवर्क है, 10 के नेटवर्क के लिए पहले सॉरी इस नेटवर्क पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से भी हम सेटिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी सेटिंग है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट सपोज इसमें हमने 2 रेंजेस क्रिएट की और एक सिंगल रेंजेस क्रिएट की, एक सिंगल रेंज के अंदर हमने कुछ रिजर्वेशन किए हैं, तो सपोज उन रिजर्वेशन पे हमको एक सेपरेट DNS अप्लाई करना है और बाकी पे दूसरा DNS अप्लाई करना है, तो हम यहाँ से भी इसको पार्टीशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर में जाएंगे और यहाँ से हम रेंज क्रिएट करेंगे। सो एक रेंज है, यूजिंग टेम्पलेट भी हम कर सकते हैं, टेम्पलेट अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 10 से लेके 20 तक कर देता हूँ। हमने एक रेंज क्रिएट की और रेंज क्रिएट करने के बाद हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमारा इसके लिए DHCP सर्वर कौन सा रहेगा। ठीक है, हमने मेंबर तो वहाँ पे बता दिया था, वो नेटवर्क के लिए बताया था, बट ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, OBS है कि वही आएगा। अब ऐसा यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं आता है कि हम ऑलरेडी इस पे एक सिलेक्ट कर चुके हैं मेंबर। ठीक है, जब हम पेरेंट पे वहाँ पे IPM में भी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के लिए क्यों बोल रहा है, एक क्वेश्चन है इधर। तो इसका आंसर ये है कि आप IPM में जाके या पेरेंट नेटवर्क लेवल पे जाके वहाँ पे आप n नंबर आप मेंबर्स ऐड कर सकते हो, आप 5 भी ऐड कर सकते हो, 6 भी ऐड कर सकते हो, बट फेलोवर एसोसिएशन बनेगा वो 2 के बीच में ही बनेगा। फेलोवर एसोसिएशन बाद में कवर कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, अभी हो जाएगा तो अभी कर लेंगे। ठीक है, बट सपोज हमने एक रेंज क्रिएट की, छोटी सी रेंज है हमारी 10 से 20 तक के लिए, उसके लिए हमें DHCP सर्वर पर्टिकुलर ये रखना है। ठीक है, और कोई हमें एक और दूसरी रेंज क्रिएट कर रहा है, सपोज 50 से लेके 250 तक क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए हमें दूसरा कोई ग्रिड मेंबर यूज करना है जो हमने उसमें सेलेक्ट किया है ऑलरेडी, तो वो इधर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, वो इधर रिफ्लेक्ट करेगा, तो हम अलग अलग DHCP सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग रेंजेस के लिए। अनदर ऑप्शन नन, रिजर्व रेंज के लिए तो नन हो गया, सेकंड मैंने ये बता दिया। थर्ड नंबर का आता है फेलोवर एसोसिएशन। सो हम फेलोवर एसोसिएशन क्रिएट करेंगे जब हम FOA बोलते हैं इसको इसमें, तो FOA में हम मैक्सिमम 2 DHCP सर्वर को ऐड करेंगे। तो 2 DHCP सर्वर है, सपोज हमारा /24 का नेटवर्क है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 127 तक के लिए हम पर्टिकुलर 0 से लेके 127 तक हम एक सर्वर दे दें और 128 से लेके 254 तक लेट से हम दूसरा सर्वर दे दें। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों सर्वर के बीच में लोड बैलेंसिंग भी चलेगी, लेकिन इन एनी सिनेरियो अगर एक सर्वर फेल हो जाता है तो फिर पूरी की पूरी रेंज के लिए एक वन सर्वर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो इसमें लोड बैलेंसिंग भी होती रहेगी प्लस फेल ओवर भी होगा। ऐसे भी तो होता है ना कि उसका कुछ एक मैक एड्रेस का एल्गोरिथम होता है, वो फेल ओवर के टाइम पे सिर्फ उन्हीं 127 को सपोर्ट करेगा। सो सपोज हमारे पास रीजन ए में सर्वर ए है, रीजन बी में सर्वर बी है, हमने फेल ओवर एसोसिएशन बना दिया उसको कि अगर ए गोज डाउन बी विल टेक द लोड। ठीक है, तो उसमें क्या करता है कि वो अगर /24 का सबनेट, इट विल स्प्लिट इनटू 2 /25 और वो इक्वली लोड बैलेंस कर देगा। अगर प्राइमरी सर्वर डाउन हो जाता है तो देन
उसको क्या कहते हैं, जो 127 जो उनकी कोई एक मैक एड्रेस की हैशिंग होती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली ओनली दे विल गेट द चांस टू हैव द आईपी एड्रेस। अगर जब तक वो डाउन है, वो बाकियों को आउटेज आएगी, कुछ ऐसा करके होता है। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, फेल ओवर एसोसिएशन बनाता हूँ इधर, अभी देख लेते हैं लगे हाथ। सो ब्रांच फेल ओवर, ब्रांच एचओ एफओ एक बनाया था मैंने, वो इसमें दिखा रहा है, कभी बनाया होगा लास्ट टाइम मैंने। तो इसमें एक ब्रांच को ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये फर्स्ट हो गया हमारा फेल ओवर प्राइमरी। फेल ओवर सेकेंडरी पे ले रहा हूँ मैं इसको, अपना ग्रिड मास्टर को ही दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना कि लोड बैलेंसिंग डेटा, ये बैलेंस्ड है तो ये ऑटोमेटिक करेगा, ठीक है। और ये लीज डिटेक्शन का है, तो अगर हम ओवरराइड करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, कीप लीजेस फ्रॉम डिलीटेड रेंजेस 1 वीक आफ्टर डिलीशन। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इनहेरिट कर देता हूँ, ये जो भी सेटिंग ग्रेड पे है वहां से लेगा, ठीक है। एक्सटेंसिबल एट्रीब्यूट कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी देर में आप आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ अब अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें सिर्फ इतनी ही सेटिंग मिल रही फेल ओवर सेटिंग के लिए, बैलेंस्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो मैंने बताया था। अब अगर एडवांस में देखते हैं तो क्या मिल रहा है इसमें, तो ये तो पीयर्स का जो टाइमर्स हैं उनकी वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। और ये डिले है और इंटरवल्स है इसके, कीप अलाइव है, अपडेट्स है, ये दिखा रहा है कि कब कब ये अपडेट करेगा फ्रीक्वेंट इंटरवल में आपस में अपने पीयर को। बाकी तो वो सेटिंग नहीं दिख रही इसमें जो आप बोल रहे हैं, देखते हैं अगर और कहीं होगी तो। ये तो आप है ना, इससे रीचेबिलिटी भी देख लेते हैं, हमने चेक नहीं किया ना जब से लॉगिन किया है। यस रीचेबल, मतलब ये आप आएगा। अच्छा ये अब क्यों नहीं आ रहा मालूम, हमने अभी इस पे डीएचसीपी सर्विसेज इस पे स्टार्ट नहीं की है, आई बिलीव। सर्विसेज में जाएंगे, बट फेल ओवर तो आ जाना चाहिए ना अब। नहीं ये इस पे एचओ वाला जो हमारा अप्लायंस है ग्रिड मास्टर, उस पे डीएचसीपी सर्विसेज ही नहीं चल रही थी ना, इसलिए अब नहीं आ रहा। ओके, अभी आ गया, अब थोड़ी सी देर लेगा, ये आ जाएगा, ठीक है। सेकंड थिंग, वो पर्टिकुलर नेटवर्क है, इसको तो हम बाद में देख लेंगे, उस पर भी ऐड करना पड़ेगा उधर जाके हमें पेरेंट लेवल पे, ठीक है। जब तक वो आ पाता है जब तक देख लेते हैं हम इधर। हम 10 के नेटवर्क पे काम कर रहे थे ना, ठीक है। इस नेटवर्क के लिए हम इसको बता देते हैं कि आपको एक और हम पेयर दे रहे हैं, ठीक है। इसको इधर भी ऐड कर दिए। अब उधर हम इस नेटवर्क पे मल्टीपल, हमारे पास सपोज 10 डिवाइसेस हैं, और सॉरी हमारे पास 10 डिवाइसेस हैं, सपोज 10 इन्फोब्लॉक्स अप्लायंसेस हैं, और 5 इन्फोब्लॉक्स अप्लायंसेस हैं, 2 हमारे पास विंडोज डीएनएस सर्वर है, तो हम उनको भी ऐड कर सकते हैं, सारे के सारे ऐड कर सकते हैं। बट जो भी फेलोवर एसोसिएशन को बिलोंग करते हैं वो होना जरूरी है, तभी फेलोवर होगा। इसको रिस्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं हमारा पेयर अप आया कि नहीं। लास्ट टाइम में बहुत देर ली थी, ऐसा मेरे को याद है। आएगा पाएगा।
तो हमको रेंज क्रिएट करना थी, हम रेंज क्रिएट करने वाले थे। अभी अगर हम रेंज क्रिएट करते तो अब हमको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। 10 से लेके हम 20 तक के लिए ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो हमको 2 देखने लगे इसमें, क्योंकि हमने पेरेंट लेवल पे 2 असाइन किए हैं DHCP सर्वर। अगर हम उसकी जगह पे फेल ओवर एसोसिएशन देते हैं तो अभी बाय डिफॉल्ट एक ही फेल ओवर एसोसिएशन, हम अगर एक से ज़्यादा बना देते हैं तो फिर हमको यहाँ पे लिस्ट देखने लगेगी। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट कर लेना उसको, ये ब्रांच की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको क्रिएट करते हैं। इधर देखते हैं तक आ पाया कि नहीं आया। मेंबर्स, ठीक है, टाइम लेगा। ठीक है, हमने अपना इस तरफ का इन्फो ब्लॉक्स तरफ का काम कर दिया है। अगर अभी हम स्विच पे देखें तो स्विच का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इस पे बीलन तो कॉन्फ़िगर है, बट इस पे हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है कहीं भी। तो इस पे हम चलेंगे, हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस बीलन 1 IP हेल्प, क्या हुआ भाई? एक 10.1 दे दिया और सॉरी ये मैं गलत कॉन्फ़िगर किया। 10.1 तो गेटवे है ना, गेटवे वही मैं कह रहा हूँ ना, ये गलत मैंने कर दिया। तो 192 सॉरी 172.16 क्रिएट का होगा ना, हाँ 4.2 दे दिया और इसको मैं दे देता हूँ 192.168.3.11। अब इसके बाद हमारा जो क्लाइंट है, क्लाइंट को देखते हैं। IP DHCP ये क्या करता है। अच्छा, DHCP से फिर से देखते हैं। एक बार देख लीजिए स्विच से आपका ग्रिड मेंबर पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ, तो पहले इसका और कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सॉरी पिंग चेक कर लीजिए। नहीं, इसका ये तो हटाना पड़ेगा। सारे पे डिफॉल्ट है, ठीक है। पिन 16.4.2 ठीक है, ये तो रीचेबल नहीं है। ये भी रीचेबल नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। याद ही नहीं राउटर कौन से चला रहा हूँ इसमें।
ये एडवर्टाइज हो रहा है इसमें 0.3 है 10.2 है यहाँ से पिंग करके देखिए। ये reachable है। स्विच पे देखिए डिफॉल्ट रूट है। एक मिनट ये reachable है। स्विच पे देखिए डिफॉल्ट रूट है। डिफॉल्ट रूट विलन है इसमें सर डिफॉल्ट रूट की जरूरत पड़ेगी नहीं नहीं हाँ डालिए। सो आईपी रूट कीजिए ना। रूट डाल दीजिए एक डिफॉल्ट रूट डाल दीजिए। टेन डॉट टू की तरफ 192.168 10.2 अब चेक कर लीजिए। पिंग मार के चेक कीजिए। यहाँ से बोल रहा है वहां से हो रहा है इधर। टू तो रिचेबल है अब हुआ ना। क्या लगता है कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया यहाँ इस राउटर से रिचेबल है। इसमें 10 का नेटवर्क पड़ा है इसका मतलब R4 पे आपका राउट लर्न नहीं हुआ। R4 पे जाइए। नहीं तो हमारे इससे रीचेबल है ना ये हाँ R4 पे जाइए ना एक बार। हाँ यहाँ शो आईपी रूट 192.168 10.1 10.1 रन हो रहा है यहाँ तो लर्न हो रहा है मारिए तो पिंग। टेन डॉट टू अच्छा 1 हो गया तो 2 भी। तो इसका मतलब आपका जो ग्रिड मेंबर है ना इस पे गेटवे सही काम नहीं कर रहा। नहीं ठीक है ग्रेड मेंबर को छोड़ देते हैं पिंग इससे हम 192.168.3.11 भी पिंग कर रहे हैं तो भी पिंग नहीं हो रहा अच्छा ये से अब होने लगा यार ये अभी तो ये भी पिंग नहीं हो रहा था 1722 नहीं हो रहा था 3.11 वो हो गया आपका। ये अनरीचेबल क्योंकि ACL वगैरह तो नहीं है। नहीं कोई ACL नहीं है ग्रिड मेंबर पे गेटवे परफेक्टली कॉन्फ़िगर है। हाँ अगर मैं ये R4 पे आईपी क्या है आपका? ये अगर मैं इससे 4.1 पिंग ना करता हूँ एक मिनट 4.1 को पिक कीजिए। अच्छा इससे भी अनरीचेबल है ये तो सॉरी मैंने गलत दिया नहीं, इससे भी रीचेबल है ये तो मास्टर से रीचेबल है ये ना एक बार ना ये स्विच पे जाइए जाइए। कौन सा स्विच था आपका? यही हाँ यहाँ से 4.1 को पिंग कीजिए 172.16 4.1 16.4.1 पिंग हो रहा है ये हो रहा है तो ना। भी पिंग अरे हम गलत डाल रहे थे सर ठीक है चलिए ठीक है इसको आईपी मिल गया अगर अब हम इस पे देखते हैं हम अपने लीजेस में देखते हैं अगर PSCP और लीजेस तो ये लीज में एंट्री आ गई हमारे पास 10.15 तो ये लीज कौन कौन दे रहा है ये दोनों लोग देने लगे अब इसका मतलब हमारा फेल ओवर एसोसिएशन भी अब आ गया है मेंबर्स फेल ओवर एसोसिएशन ये अब आ गया
ठीक है, अगला नेटवर्क हमारा क्या था? सॉरी, मैं डायरेक्ट DHCP में जाता हूँ, नेटवर्क्स में जाता हूँ, और 6 का नेटवर्क था हमारा ये। तो इस क्लाइंट को हमको DHCP IP देना है, तो 6 के नेटवर्क पे जाके एक रेंज यहाँ भी क्रिएट कर देता हूँ। हमारे ना ये चल रही है DHCP की माइग्रेशन ऑन प्रेम से क्लाउड बेस्ड UDDI जो इसमें कहते हैं ना। हाँ हाँ तो उसमें क्या है कि पहले तो एक आधी साइट की करी, तो हमने उधर सबनेट शट नो शट करे, शट का मतलब उधर सबनेट्स में IP हेल्पर एड्रेस चेंज कर दिया। फिर यहाँ इन्होंने मैनुअली एक एक का DHCP को डिसेबल किया, और जो हमारा ऑन प्रेम वाला है वहाँ पे इनेबल किया। हाँ मतलब ऑलरेडी इन्फो ब्लॉक्स ने स्क्रिप्टेड वे में इसका सारा डेटा एक्सट्रैक्ट किया और UDDI में इंपोर्ट कर लिया। अच्छा तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले, क्योंकि अभी क्या है कि पूरा मतलब क्या है रीजन वाइज हमें करना है, जिसमें अराउंड 70-80 सबनेट्स हैं, ठीक हाँ है। और 70-80 सबनेट्स का जैसे अगर आपको इन्हें सिंगल को DHCP इनेबल करना हो या अगर DHCP डिसेबल करना हो, तो फिर मैंने उसमें ना एक इसका जो CSV टूल है उसमें से उसको जो एग्जिस्टिंग फाइल थी उसको डाउनलोड किया, ठीक है। CSV पोर्टल से। CSV टूल मैनेजर से ना CSV एक्सपोर्ट करके। अच्छा तो लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा डेटा आता है, मतलब बहुत सारी फील्ड्स, जितनी भी सारी फील्ड्स हैं वो सारी की सारी उसमें थी। तो देन व्हाट आई डिड फर्दर कि मैंने जैसे नेटवर्क, फिर सबनेट मास्क, और फिर मैंने वो ना जो DHCP की जो फील्ड थी उसे सिलेक्ट कर लिया। हाँ हाँ तो फिर मैंने किसी एक सबनेट के लिए पुश करके देखा तो वो हो गया, वो जो CSV टूल। तो अभी मेरी जो नेक्स्ट कोशिश है इट इज की व्हाट आई विल डू, अभी हमारा मंडे को चेंज है, और अगर वो होता है सक्सेसफुल कि दिन CSV फाइल यू लिस्ट डाउन ऑल द सबनेट्स एंड यू इंपोर्ट इट बैक टू द इन्फो ब्लॉक्स, अगर वो उसमें इनेबल या डिसेबल उससे कर पाए तो इट विल रिड्यूस ए लॉट मच मैनुअल एफर्ट। अच्छा। तो CSV इंपोर्ट बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन शानदार चीज है वो। हाँ, मैंने मेरा थोड़ा एक्सेल, मेरा बीइंग ए लेजी गाय, मेरा एक्सेल थोड़ा ठीक चलता है। तो फिर उसमें वो CSV फाइल बनाई, और मैंने इन सभी की जो लीज टाइम थी, जैसे अभी आप दिखा रहे थे ना ऑप्शंस में सबसे ऊपर से लीज टाइम आती है, हाँ हाँ तो हमारे एज ऑफ नाउ द लीज वो सेट टू 1 वीक या 8 डेज के बराबर थी, 8 डेज बाई ठीक है। डिफॉल्ट 8 डेज की होगी। हाँ, 8 डेज से कुछ हमारे पे 1 डे की थी, तो मैंने उसका भी फिर जो लीज टाइम था देन आई ब्रॉट इट डाउन टू 1 आवर। तो वो भी मैंने फिर वहाँ पे 36 मिनट की वैल्यू डाल के हाँ हाँ आई एम सॉरी आपके मनीष जी, ऊपर। आई एम सॉरी बाई डिफॉल्ट 12 आवर का हाँ दिखा हाँ, यहाँ पे रहा है। तो मैंने उसको यहाँ पे लीज टाइम को मैंने रिड्यूस कर दिया। इधर ज्ञान बाग कॉलोनी में जाके करा लेता ना। चल ठीक है, सुबह निकलवा लेंगे, सुबह मैं निकलवा दूंगा। सॉरी मनीष जी, बेटा आ गया अरे यहाँ पे भी ये सब है। तो मैंने फिर मैंने उसकी लीज टाइम को भी ऐसे CSV टूल से किया, लाइक एंड शो तो राज एंड विमल भाई। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, ये ऑप्शन है, इस पे हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो अभी क्या किया मैंने कि ये 6 का जो रेंज है इस पे एक ही मेंबर दिया है, फेलोवर एसोसिएशन जो बनाया है, तो एक ही मेंबर दिया है इसमें। इसमें इस पे मैं फेलोवर एसोसिएशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। इधर एक मेंबर ऑलरेडी फेल है, तो उसको मैंने शट डाउन ही कर दिया क्योंकि यूटिलाइजेशन ज़्यादा जा रहा था। अभी मैं अपना ये विंडोज क्लाइंट को ऑन कर रहा हूँ, पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलेगा इन द सेंस मैंने डोमेन शायद कॉन्फ़िगर कर दिया था, तो डोमेन मांगेगा जहाँ तक, देखते हैं। अरे चल रहे हार्दिक, सब लोग सुन रहे हैं, आवाज जा रही है बेटा।
मैं पीट दूंगा मैं दोनों को। तेरे को शर्म नहीं आती आवाज जा रही वहां तक? हाँ, ये डोमेन तो इसमें कॉन्फ़िगर है, ठीक है, लेकिन याद ही नहीं है क्या है पासवर्ड इसका। इसका टेस्ट 1 2 3 होता है। टी बड़ा टेस्ट 1 2 3। नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा। यूजर क्या था ये याद नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है शायद। हाँ एडमिनिस्ट्रेटर है। नहीं ले रहा। नहीं ले रहा। हाँ, ठीक है ना, इसको ऑन कर देता हूँ। सपोज हमने जैसे इन्फोब्लॉक्स पे कोई सेटिंग अगर रॉन्ग पुश कर दी इधर, तो जब तक DHCP से क्लाइंट दोहरा प्रोसेस फॉलो करके सेटिंग्स ऑब्टेन नहीं करेगा तब तक वो इन्फोर्स नहीं होगी उस पर कोई भी पॉलिसी। तो उस पर ज़्यादा बरी होने की ज़रूरत नहीं है अगर हमने ऐसा कुछ रॉन्ग कर दिया है तो। जैसे हमारा DHCP ये AD सर्वर है, तो AD सर्वर पूरी सेटिंग हम उसमें IP एड्रेस हमने स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया है, तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। अब इस पे जाता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ इन्फोलॉक्स लैब। पासवर्ड तो सबके मैंने टेस्ट 1 2 3 ही दिए हुए हैं, ठीक है, ले लेना चाहिए अब। टेस्ट 1 2 3 वहाँ पे भी होगा शायद, फेल नहीं करना चाहिए। ले लिया, ठीक है, लेकिन इस पे IP ऑप्टेन किया कि नहीं DHCP से, ये देखते हैं। नेटवर्क डिस्कनेक्टेड आ रहा है आपका। नहीं, वो इंटरनेट नहीं मिलने से आ रहा है ऐसा। अच्छा थोड़ा स्लो हो गया सेटअप मेरा। ओके, तो ये DHCP इनेबल है, DHCP से पूरी सेटिंग इसने ली है,
यू कैन सी यहाँ, अरे तो डोमेन एडमिन ले लेगा ना। तो अभी आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है, ठीक है। और डोमेन इसमें प्राइमरी डीएनएस सर्वर मेरे को स्टैटिक देना है, क्योंकि इसका जब हम एडी कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये अपना खुद का एक इंटीग्रेटेड डीएनएस कॉन्फ़िगर करता है। तो अगर वो कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो फिर ये करबेरस ऑथेंटिकेशन नहीं होगा विंडोज सर्वर और क्लाइंट के बीच में, इसलिए स्टैटिक दिया था मैंने। सो अगर इसको आईपी कॉन्फ़िग /all करते हैं अगर हम, तो इसमें डीएनएस सर्वर एक ही दिखा रहा है हमारा। अभी अगर अब हम जाएं इधर और सपोज ये पूरी सिर्फ रेंज है हमारी, इसमें लीज देखते हैं पहले लीज आ गई कि नहीं आई इसकी। तो इसमें लीज में जाते हैं तो 6.25 जो आईपी विंडोज ने लिया है उसकी लीज इस पे आ गई। अब अगर हम फिर से नेटवर्क्स में जाते हैं और ये जो हमारी रेंज है, सपोज इस रेंज लेवल पे ही हमें सिर्फ अपना कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डीएचसीपी ऑप्शन चेंज करना है, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर हम मेरा 192.168. क्या दिया 6.2 दिया है, आई एम सॉरी 4.2 है आई थिंक, 4.2। तो इसको 4.2 दिया है और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर I want to give 8.8.8 global DNS। अब मैं सर्विसेज को रीस्टार्ट करता हूँ, तो सर्विसेज रीस्टार्ट हो गई, ठीक है। तो सर्वर है, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी तो नहीं दिखा रहा है, अब मैं इसको रिन्यू करता हूँ और रिलीज और रिन्यू भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट रिन्यू करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। नहीं आया, ठीक है। रिलीज करते हैं, ठीक है। रिलीज कर दिया, अभी रिन्यू करते हैं। सॉरी जल्दबाजी में डबल क्लिक कर दिया। अपने ना यहाँ पे डीएनएस में डीएचसीपी ऑटोमेटिकली वाला सेटिंग नहीं किया है, हाँ वो देखते हैं, मैनुअल सेटिंग रखा है, इसलिए नहीं ले रहा। हटा देते हैं फिर देखते हैं। सही पकड़ा राज भाई, थैंक यू। आ गया। तो जो भी हम सेटिंग पुश करेंगे वहां से तुरंत ये ऑब्टेन कर लेगा। तो ये तो हमारा डीएचसीपी पार्ट हो गया। और प्लस अगर हम फेलोवेयर एसोसिएशन हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम इसमें लोड बैलेंसिंग उतनी ही दिखा रहा है मनीष जी। जो हमने 10 में कॉन्फ़िगर किए हैं तो इसकी चलो मैं ना आई लुक फॉर दैट आर्टिकल, अगर मुझे कुछ मिला ना वो मैक एड्रेस वाला, तो फिर मैं आपको बताऊंगा वो। ठीक है। इसको क्या हो गया, मेरा क्लाइंट एक्चुअली मुझे बता रहा था, तो वो है बंदा नॉलेजेबल, मैं उसे ऐसे नहीं कि उसने वैसे फेंक की हो बात। अगर हम इसमें चेक करते हैं मेंबर, ठीक है। डीएचसीपी ऑप्शंस, डीएचसीपी
ये तो एक नॉर्मल ऑप्शंस हो गए, बिलियन असाइनमेंट, ठीक है। ये तो सिर्फ यूटिलाइजेशन सेटिंग्स दिखा रहा है बस। मैं भी इसको सर्च करूंगा। इसको सर्च करूंगा, वैसे तो ऐसा मेरे को नहीं मिला है अभी तक। ये तो सब यूटिलाइजेशन थ्रेशोल्ड्स हैं। ठीक है, मैं और इसको फाइंड करूंगा अगर मिलता है कुछ तो। ठीक है जैन साहब, ठीक है, आगे बढ़े। स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग। आगे बढ़े कि इसमें कि नहीं रहने दीजिए, आज काफी दूर से आया हूँ।